Bismillahirrahmanirrahim. Now, students, we will start with the Unit 4 Cells and Tissues MCQs. First MCQ: a network of channels extending from cell membrane to nuclear membrane is called, that is, endoplasmic reticulum. Option B. The site of enzyme synthesis in cell is option A, that is lysosome. The concentration of calcium in a cell is 0.9%. The concentration of calcium in the surrounding fluid is 0.1%. How could the cell obtain more calcium? That is by the active transport process. Option D. Fifth MCQ is: which is the main advantage of small cell size? That is, what is the advantage? That is, small cells can better take up what they need from the environment. Option A is correct. Sixth MCQ: which of the following clue would tell you whether a cell is prokaryotic or यूकैरियोटिक? क्या आप कौन से ऐसे क्लूज आपको पता होंगे जिसकी मदद से आप बता सकेंगे सेल प्रोकैरियोटिक है, दैट इज, और यूकैरियोटिक, हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और नॉट? सो option A is correct, whether or not the cell is partitioned by internal membrane. Coming towards the seventh MCQ, the diagram shows cells and part of the leaf of green plant. Which region contains cells which are responsible for the transport of water? अब आपने बताना है इनमें से कौन सा वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा. अब जिस तरह से ए आपके पास, डी है दैट इज एपिडर्मस, सी एंड बी. B is again outer layer, that is epidermis. C having palisade and spongy mesophyll. And if we come towards option A, that is basically transport water, and that is xylem. So option A is correct. Coming towards 8th MCQ, what is the major advantage of using light microscope instead of electron microscope? क्या एडवांटेज है कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? So option B is correct, that is superior resolution. Ninth MCQ, the diagram shows the net movement of water by osmosis between 4 adjacent cells. Which cell has the lowest solute concentration? इसमें आपने बताना है कि किस में solute concentration सबसे कम है. So the net movement, if you note, that is option C is correct, having net movement of water जो है और सेल के अंदर having less solute concentration. Option C is correct. So 10th MCQ, the diagram shows a typical plant cell after being placed in concentrated salt solution for 10 minutes. एक डायग्राम आपको दी गई है जिसमें एक प्लांट सेल को प्लेस किया गया है सॉल्ट सोल्यूशन में 10 मिनट्स के लिए. अब आपने इनमें से इस डायग्राम को देखते हुए बताना है विच नंबर स्ट्रक्चर्स आर पार्शली परमिएबल. अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा पार्शली सेलेक्टिवली परमिएबल दैट अलाउज, तो देन वी सी ऑप्शन 2, नंबर 2. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 ओनली. Next MCQ is: the diagram shows cytoplasmic region of some cells. Which cell represents prokaryote? अब इसमें से आपने बताना है कि prokaryote कौन सा है. तो बाकी जो A, B आपको नज़र आ रहा है having cytoplasmic, option C represent prokaryote having genetic material dispersed in cytoplasm. So option C is correct. Coming toward the 12th MCQ, how do nitrate ions, oxygen and water enter root hair cells? अब इनमें से नाइट्रेट आयंस ऑक्सीजन या वाटर रूट हेयर सेल से कैसे एंटर करेगी? तो अगर हम आयंस देखें जो आपके पास है, बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन, वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस एंड आयंस मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो ऑप्शन सी, डी इज करेक्ट. ऑक्सीजन दैट विल मूव बाय डिफ्यूजन, वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड नाइट्रेट आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. 13 MCQ, the table shows 3 functions of cells, which row is correct? अब आपके पास 3 फंक्शंस बताए हुए हैं सेल्स की. अब आपने बताना है कि कौन सी रो करेक्ट है. हैविंग 3 कॉलम्स, ऑब्जॉर्प्शन, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट. अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा. तो हमें रूट हेयर सेल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेंगे, सपोर्ट जाइलम वेसल करेगा, एंड रेड ब्लड सेल्स दे आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट. So option B is correct. 14th, the resolving power or resolution of microscope may be defined as. resolving power और resolution microscope उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एबिलिटी माइक्रोस्कोप के अंदर कि वो डिस्टिंग्विश करे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज नोन एज इट्स रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 15th MCQ, the table shows the presence or absence of nucleus in 3 types of cells. Which option is correct? अब आपने बताना है कि प्रेजेंस मौजूद है न्यूक्लियस या एब्सेंट है. 3 डिफरेंट तरह के सेल्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट है रेड ब्लड सेल, सेकंड है कंपेनियन सेल और तीसरा है सीव एलिमेंट. अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स दे आर ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट.
When they get mature, companion cells, they have nucleus present. And sieve elements, they also have nucleus, presence of nucleus. So option B is correct. Red blood cell absent, nucleus absent. Enucleated companion cell and sieve element both have nucleus, they are that is present. MCQ 16, what are the function of xylem and phloem in green plants? We know that xylem not only transport water but also support the plant, and same is the phloem is involved in the transportation of food, that is in the form of sugar. Food is transported, so option C is correct. Support and transport of water and transport of sugar. Next MCQ, what are the functions of mitochondria? As mitochondria is known as power of the cell, so it is involved in cellular respiration. Option D is correct. 18th, a red blood cell and a plant root hair cell both have, दोनों में क्या फीचर्स सेम है? बोथ हैव लार्ज सरफेस एरिया. Red blood cell involved in the transport of oxygen in the whole body cells with the help of hemoglobin, and same is the case with the plant root hair cells. It should have large surface area for the maximum absorption of water, nutrients, mineral ions. So option C is correct. 19th, which of the following is present in all eukaryotic cells? ऑप्शन ए बी सी डी में से आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होनी चाहिए. इनमें से एक, दैट इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, दैट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लास्ट एमसीक्यू इज द डायग्राम शोज सेल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. विच टाइप ऑफ सेल कंट्रैक्ट्स व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड? अब इनमें आपके पास कौन सा सेल जो है वो स्टिमुलेट करेगा? सो विच सेल कंट्रैक्ट व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड? And A is red blood cell, C is stomata, D neuron, and B is muscle cell. So muscle cells, they become they contract when they are stimulated. So option B is correct. Now coming towards unit 5, that is cell cycle. First MCQ is, the period of cell cycle between two consecutive division is termed as, that is known as interphase. Second MCQ, which of the following phase of mitosis is essentially the opposite of prophase in terms of न्यूक्लियर चेंज? प्रोफेज के अपोजिट आपके पास है टीलोफेज. सारी चीज़ें रिवर्सल होती हैं. सो प्रोफेज स्टार्टिंग फेज है, टीलोफेज एंडिंग फेज है. तो आपके पास ये सारा अपोजिट है टीलोफेज प्रोफेज के. थर्ड MCQ, व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप? कब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होंगे? माइटोसिस में, म्योसिस 2 में, बोथ माइटोसिस एंड म्योसिस, या ओनली इन म्योसिस 1? ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिर्फ म्योसिस 1 में क्रोमोसोम्स पेयर अप होंगे और होमोलोगस फॉर्म में होंगे. नेक्स्ट MCQ, द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, दे आर नोन एज क्रोमेटिड्स. अब जो क्रोमेटिन है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल बिफोर सेल डिवीजन. थ्रेड लाइक फॉर्म, diploid having 2n number, and centromere is the central part. So arms of chromosome, they are known as chromatid. Option B is correct. Fifth MCQ, cytokinesis is division of nucleus, mitosis, division of cytoplasm, or division of centromere. Cyto means cytoplasm and kinesis means division. So division of cytoplasm is known as cytokinesis, and the division of nucleus is known as kerokinesis. So option C is correct, division of cytoplasm. Sixth MCQ, which of the following cell is at metaphase 1 stage? इनमें से आपने बताना है कि कौन सा मेटाफेज 1 स्टेज पे है. अगर आप देखें तो ए वाला भी आपके पास मेटाफेज स्टेज आ रही है, लेकिन उसमें आपके पास पेयरिंग शो नहीं हुई. हमें जो बी वाला है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होंगे इन द मिडल और ऑफ द सेल प्लेट और द इक्वेटर ऑफ सेल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड डी इज अगेन द लास्ट पेज इन विच डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप एट द मिडल ऑफ द सेल प्लेट. सेवन्थ MCQ, विच प्रोसेस इन्वॉल्व म्योसिस? अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सा प्रोसेस म्योसिस इन्वॉल्व करेगा? गैमीट फॉर्मेशन, रीजनरेशन और क्रॉसिंग ओवर. सो क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स म्योसिस. सो सर्कल द क्रॉसिंग ओवर. एट्थ MCQ, द डायग्राम इज शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. विच स्टेज कंटेन क्याज्मा? अब आपके पास एक फिगर दी हुई है, इसमें मुख्तलिफ आपके पास क्रोमोसोम्स बताए हुए हैं ABCD. अब आपने बताना है कि इनमें से किस डायग्राम में क्रॉसिंग ओवर शो हो रही है, लेकिन आपके पास क्याज्मा किस में बन रहा है. तो बेसिकली द अटैचमेंट पॉइंट वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस अटैचमेंट पॉइंट इज नोन एज क्याज्मा और क्याज्मेटा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैविंग क्याज्मेटा फॉर्मेशन. नाइन्थ MCQ, in which stage of cell cycle the cell stops dividing? G1 phase prepare होता है cell for different functions, protein synthesis, increase the number of organelles. S phase duplication phase. G2 phase for the formation of spindle fibers, and the last G1 phase
ऑप्शन डी इज करेक्ट, that is resting phase of the cell in which cell stops dividing permanently or for indefinite period of time. 10th MCQ, a cell is undergoing the process of cell death. It can be apoptosis if the cell, अब आपके पास एक सेल है वो सेल डेथ के प्रोसीजर से गुजर रहा है. दो तरह की आपको पता है सेल डेथ है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस. अब आपको कहा गया है कि इट कैन बी अपोप्टोसिस. वो अगर आप कह सकते हैं कि अपोप्टोसिस है अगर सेल क्या करे, स्वेल करे, रप्चर करे, बर्स्ट करे या ब्लेब बनाए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इट फॉर्म इरेगुलर शेप और बॉडीज दैट इज नोन एज ब्लेब्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 11th MCQ, द डायग्राम शोज रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम. अब आपके पास एक फिगर दी है, उसमें से कहा गया इन विच फेज ऑफ इंटरफेस रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर. अब इसमें किस में रेप्लिकेशन होगी क्रोमोसोम में, एम फेज में, दैट इज माइटोटिक फेज जो है आपके पास, G2 फेज आ रहा है, G1 फेज आ रहा है, एस फेज. तो एस फेज में आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी. तो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. 12th MCQ, chromosomal number of fruit fly is 8. The gamete of fruit fly contains. अब इसमें से ऑप्शंस इधर प्रोवाइड नहीं है. ए बी सी डी है. ए ऑप्शन है 2 क्रोमोसोम, बी है 4 क्रोमोसोम, सी है 8 क्रोमोसोम और डी है 16 क्रोमोसोम. तो आपने बताना है कि टोटल 8 हैं, तो जब गेमीट्स बनेंगे तो वो हो जाएंगे 4 क्रोमोसोम. सो 4 क्रोमोसोम ऑप्शन इज करेक्ट एंड इन बुक इट इज ऑप्शन बी. Coming towards MCQs of Unit 6, that is enzyme. One last MCQ of Chapter 5 skipped, that is chiasmata formation take place during prophase 1. Find out how many chiasmata are there in the diagram. तो अब आपके पास इसमें जो 13 MCQ होगा स्टूडेंट, उसमें ऑप्शन बी आएगा, दैट इज़ 2. अब यहाँ पे फिगर शो नहीं हो रही, तो इसमें आपने अगर जो आपके बुक पे आप देखें 13 MCQ है, उसका ऑप्शन बी बनेगा आपके पास. Coming towards the next chapter, that is enzyme, Unit 6. First MCQ is the catalytic activity of an enzyme is restricted to its small portion called. अब आपके पास क्या है कि एंजाइम का जो पूरा पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल पोर्शन, जो वो एरिया जो इन्वॉल्व होगा कैटालाइटिक एक्टिविटी में, रिएक्शन में रोल प्ले करेगा, दैट इज नोन एज इट्स एक्टिव साइट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकेंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ. अब आपके पास जो स्टार्च होगा उसमें कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, उसकी हाइड्रोलाइसिस किसकी मदद से होगी, तो जो एमएलएज एंजाइम है वो स्टार्च पे हाइड्रोलाइज करवाएगा स्टार्च को. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ये 15 यूनिट का ये 5 यूनिट सेल साइकिल का ये जो आपको भी हमने डिस्कस किया था फ्रूट प्राइज, जिसमें 8 टोटल क्रोमोसोम थे, जब गेमीट्स बनाएंगे तो 4 क्रोमोसोम आएंगे. और जो 13 था वो आपके पास क्याज़मेटा फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है और ये प्रोफेस 1 में. तो आपने बताना है कितने क्याज़मेटा हैं बनेंगे इन डायग्राम. सो ऑप्शन बी 2 इज़ करेक्ट. 2 क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई है, तो ये आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है. अब दोबारा से आएंगे हम 6 यूनिट के MCQs की तरफ. विच इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम. अब एंजाइम के बारे में क्या ट्रू है, दैट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन. ऑल प्रोटीन आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. फोर्थ, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन सपोर्ट्स दैट एक्टिव साइट्स आर रिजिड. एक्टिव जो लॉक एंड की मॉडल है उसमें हमारे पास ये है कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होंगी. सेम उसी तरह से आप जो बाइंड करेगा सबस्ट्रेट आके वो उसी की एक्टिव साइट की ही शेप का होना चाहिए. जबकि इंड्यूस फिट मॉडल में वो फ्लेक्सिबल है, या आपके पास जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को मॉडिफाई करेगी अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट. लेकिन लॉक और की मॉडल में जिस तरह लॉक और की स्पेसिफाइड होते हैं, इसी तरह से एक्टिव साइट भी रिजिड होगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ, विच ग्राफ शोज हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन. आपके पास ए फिगर दी हुई है, बी सी एंड डी. अब इसमें से आपने बताना है कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा. आपके पास दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे उसका रेट दिया है. तो आपके पास ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, जिसमें आपके पास 40 डिग्री एक लिमिट है. बिलो 40 आपके पास जो फैक्टर आ रहा है और एक पहले पीक पे जाएगा और फिर उसके बाद से वो डी नेचर होने शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट 6 MCQ, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन ए सेल इज कॉल्ड. कलेक्टिवली जितने भी रिएक्शंस हों सेल के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म. ऑप्शन ए इज करेक्ट. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट को फैक्टर्स. अब को मीन होता है या असिस्टेंस. तो आपके पास को फैक्टर के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है, तो आप इसमें ऑप्शन बी आएगा, दैट हेल्प टू फैसिलिटेट द एंजाइम एक्टिविटी. जो हेल्प करेंगे एंजाइम को या फैसिलिटेट करेंगे. 8th MCQ, चेंज इन pH कैन अल्टर द एक्टिव साइट बाय अफेक्टिंग द. अब pH को जब हम चेंज करेंगे तो किस तरह से अल्टर करेगी एक्टिव साइट को, उसको किस तरह से इफेक्ट करेगी, तो जो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड है उसको इफेक्ट करके. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
The catalytic region of enzyme recognize and bind the substrate and carries the reaction. This region is called as. अब एंजाइम जो रिकग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा सबस्ट्रेट को, तो उसका कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, और जो रिएक्शन को कैरी आउट करेगा वो उसकी एक्टिव साइट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि पूरे का पूरा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज एक्टिव साइट. 10th MCQ, द ग्राफ शोज द एक्टिविटी ऑफ 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एट डिफरेंट pH लेवल. एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. Enzyme X and Y are both at pH 7. Enzyme X and Z are both at pH 4. Y and Z are both active at pH 4. और enzyme Y and Z are both active at pH 7. अब जो Y और Z का देखें, जो कर्व मिल रहा है आपके पास, और जो नीचे फिगर आ रही है 6 और 8 के दरमियान, उस पर अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें तो 7th पे जाके आ रहा है. तो enzyme Y और Z जो है वो दोनों एक्टिव हैं at pH 7. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट 11th MCQ is the diagram shows an amylase molecule catalyzing the breakdown of starch molecule. आपके पास एक डायग्राम ये अब दी हुई है सामने. इसमें आपको कहा गया कि एमाइलेज मालिक्यूल है, वो किस तरह से ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च मालिक्यूल को. अब फिगर को पहले आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपको लेबल किए हुए हैं एस, क्यू और आर. अब आपने इसमें बताना है कि लेबल्ड पार्ट जो है पी, क्यू, आर और एस जो है, और ये आर आखिर में दिया हुआ है आपके पास, इसमें से एंजाइम कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, सबस्ट्रेट कौन सा है और एक्टिव साइट कौन सा है. अब आपको पता है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो स्मॉल एरिया है जो इन्वॉल्व होगा. अब अगर इसमें देखें आप तो जो क्यू है, ये जो क्यू आ रहा है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये इन्वॉल्व होगी. एस एंजाइम एज अ होल है, और लास्ट में आर जो आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. एंजाइम इज एस, प्रोडक्ट इज आर, सबस्ट्रेट इज पी एंड एक्टिव साइट इज क्यू. Next 12th MCQ is the diagram shows a synthesis enzyme with substrate and product. अब एक फिगर दी हुई है, उसमें आपके पास P, Q and S. The diagram shows a synthesis enzyme with substrate and product. अब फिगर दी हुई है, अब ये जो पूरा है ये आपके पास एंजाइम ये R है, फिर P, Q and S. Which components will form enzyme substrate complex? अब कौन से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे, आपके पास P, Q, R. अब ये तीनों मिलके बनाएंगे, और एस जो है वो फिर फर्दर वो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा. पी, क्यू एंड आर इज करेक्ट. ये मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे. 13th है, लास्ट MCQ है. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एंजाइम एक्शन. आपके पास 3 फिगर्स दी हुई हैं ग्रीन कलर में. इसमें आपके पास जो ऊपर रेडिश कलर में आ रहा है वो W, X और Y है. अब ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसमें से आपने बताना है W क्या है, X क्या है, Y क्या है और Z क्या है इस केमिकल रिएक्शन में. अब आपके पास जो पूरा ग्रीन मालिक्यूल है ये एंजाइम है, तो ये आपके पास Y है. सबस्ट्रेट इसमें जो आ रहा है वो आपके पास W है. जो रेडिश कलर में शो है एक्टिव साइट जो है आपके पास, वो आपके पास शो हुई है X, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो Z. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट.